Hello friends, we are going to learn the chapter number 6, verbs expressing the present. Now let's read a few sentences. The school organizes a program on Children's Day. The teachers are planning a picnic. They have decided to go to Chaplin Park. And the last one, they have been keeping it a secret from the students. These are the four tenses. These are of present. The first one is simple present. Second, present continuous. Third, present perfect. And fourth, present perfect continuous. So, let's see the uses of the tenses. The table first one, it shows how to use the simple present for things that happens as a routine. अगर रूटीन के मुताबिक कुछ होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. सेकंड, फॉर स्टेटिंग जनरल फैक्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स. जब जनरल फैक्ट होती हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. मस्कत इज़ इन ओमान, सिंपल प्रेजेंट टेंस. For future events that are part of timetable of schedule. अगर कोई शेड्यूल होगा वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. द ट्रेन अराइव्स एट 9 PM. It is the schedule, that's why we can use simple present. For verbs related to belief, emotions and perception. Vanessa looks exhausted. So if emotion, perception और belief जब आती हैं तब हम simple present tense का यूज़ करते हैं. अगर कोई verbs possession, the senses, फीलिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स का हम यूज़ करते हैं तब हम कंटिन्यू कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं. वर्ब्स दैट इंडिकेट पोजीशन, द सेंसेस फील, हियर, स्मेल, टच, टेस्ट. फीलिंग्स लव, हैट, लाइक, प्रीफर, रिग्रेट, वांट, विश. Or abstract feelings, believe, know, think, understand, are used only in the simple present tense. तो ये सब है, ये चार खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. रिचर्ड लव्स ब्रोकोली. इज़ लविंग नहीं होगा, ये इज़ लविंग नहीं हो सकता है. और ऐसे आई एम हेटिंग यू वो भी नहीं हो सकता है. आई एम नोइंग वो भी नहीं हो सकता है. रिचर्ड इज लविंग ब्रोकोली, दैट इज रॉन्ग. एज possession, the sense, feelings and abstract feelings are used only in the simple present tense. Now let's see simple present tense form. Positive, negative and interrogative or question. How to make the sentence. Base form of the verbs s or es with singular noun and pronoun, or base form of verb with plural nouns and pronouns. जैसे कि I play, तो प्ले है वो बेस
फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसमें एस, ई एस और आई एस लगा सकते हैं. मतलब सी क्राइज, so CRY we have used there cries, third person singular. If the person is third person singular, we use S, ES or IS with a verb, with this third person singular only. Except third person singular, we use root form. I play, we play, you play, they play. There we don't use S, ES or IS, but she plays, he plays, it plays. This is positive form. Negative, we will use there do, does or not, or base form of verb. मतलब don't like, I don't like, we don't like, you don't like, they don't like, and base form like. But with third person we will use does not. She does not like, he does not like, it does not like, or Nayan does not like. So this is the negative. And question also the same. Question also the same. We will use do in the beginning of the sentence. I, we, you, they. We will use that do. And does with he, she, it and singular noun. The positive, negative and question. Now present continuous tense. Present continuous tense, it shows its name itself that I am continuing. At the time of speaking, the action is going on, that is present continuous. Let's see, use an example. For things that are happening at the moment, the wind is blowing really hard. जब बोलते वक्त अगर कोई मूवमेंट हो रही है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ करते हैं. फॉर लॉन्ग एक्शन दैट आर हैपनिंग एट द प्रेजेंट बट नॉट नेसेसरीली एट द मोमेंट एंड विल डिसकंटिन्यू इन द फ्यूचर. पहले चल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो अभी भी चलती हो और फ्यूचर में डिसकंटिन्यू हो जाएगी. उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ करते हैं. Anisha is preparing for the science quiz. Here also the present continuous. Now for action that has been planned to take place in the future. अगर फ्यूचर में हम कुछ करने वाले हैं, मीन्स मैं आज गाना गाने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू सिंग, और आई एम हैविंग लंच. सो वी आर हैविंग अ डिनर पार्टी दिस वीकेंड. फ्यूचर में होने वाली है लेकिन पहले से प्लान हो गई है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ करते हैं. देन फॉर एक्शंस दैट हैपन वेरी ऑफन, यूजुअली इन अ नेगेटिव मैनर. समथिंग इज ऑलवेज स्पिटिंग ऑन द वॉल्स. सॉरी, समवन इज ऑलवेज स्पिटिंग ऑन द वॉल्स. फॉर फंक्शन दैट ऑफन हैपन्स वेरी ऑफन, बार बार बनता रहता है और वो नेगेटिव मैनर में होता है, तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज़ करते हैं. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस फॉर्म, वहाँ पे होगा एम इज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड. तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ एम इज आर होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी वाला वर्ड वो होगा. नेगेटिव में नोट लगाएंगे खाली, सब्जेक्ट एम इज आर नॉट आईएनजी वाला वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी वाला वर्ब. क्वेश्चन में एम इज आर सिंपल सेंटेंस बना लेना है, बाद में एम इज आर है वो पहले लेना है. मतलब आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, सो आर विल बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. आर यू प्लेइंग अ गेम? शी इज आस्किंग क्वेश्चन, इज शी आस्किंग अ क्वेश्चन? So it's very simple. I think the most difficult tense is simple present and simple past. Rest of are very easy. Now let's move. Now let's see the first exercise of now let's see
Exercise number first has been given. Complete these sentences using the simple present tense or the present continuous tense form of the verbs in the bracket. First one has been given. Chiradeep writes poems for children. Second one, Manish wants to have chocolates. Wants कभी wanting नहीं हो सकता है. Manish wanting a chocolate, it's totally incorrect sentence. Want है वो फीलिंग है और वो कभी प्रेजेंट कंटिन्यू में नहीं हो सकती है. नाउ थर्ड वन, B. B means to be form. M is R, was, or this, that is. There are a lot of stories about the mysterious Bermuda Triangle. So there are B. Fourth one, they are not coming for lunch. Future plan we have discussed. अगर फ्यूचर प्लान है तो they are not coming for lunch. They are not hungry. They are, यहाँ पे स्टेट बताते हैं, पहले में एक्शन बताते हैं. फिफ्थ वन, Kalindi doesn't have to go to office on Sundays. Schedule, जब शेड्यूल होता है तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. सिक्स वन, I am watching TV. Do you want to join me? जब ये स्पीकर है आई, वो जब बोल रहा है तब एक्शन है वो हो रही है. द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ द स्पीकर इज स्पीकिंग. दैट्स वाई वी हैव यूज प्रेजेंट कंटिन्यू. आई एम वॉचिंग टीवी. सेवंथ, मोहिनी इज प्लेइंग a computer game right now. Right now, look at that. Right now word वो बताता है कि इस वक्त वो कंप्यूटर गेम खेल रही है. मोहिनी इज प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम राइट नाउ. इन द गेम शी हैज टू बिल्ड सिटीज. सो प्रेजेंट कंटिन्यू and has, have and had with to, have to, has to and had to. Eighth one, Jagjit is doing a lot of research on the subject right now, abhi, at the time of speaking. वो बहुत सारा काम कर रहा है. Lot of such research on the subject right now. B. Rewrite these sentences using the simple present tense form of the verbs. Simple present tense का फॉर्म यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है. The water is boiling at 100 degrees Celsius. It's wrong one. Water boils at 100 degrees Celsius. Now, do she learn the Kathak or Odissi form of dance? तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन को देखना है. जो सी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में डज ही लगाएंगे. याद रखना, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम वहाँ पे डज यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे पहले सेंटेंस में डू दिया है, तो सेंटेंस विल बी डज शी लर्न द कथक और ओडिसी फॉर्म ऑफ डांस.
So we have used that does as she is third person singular. My sister hit the basketball team of her college. तो यहाँ पे माई सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, मैंने बोला है ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन. तो माई सिस्टर हैड्स द बास्केटबॉल टीम ऑफ हर कॉलेज. द सिस्टर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो वी विल हैव टू ऐड एस, ई एस और आई एस टू द रूट वर्ब फॉर्म. Fourth, how often are you practicing piano? How often are you practicing the piano? तो यहाँ पे आर यू प्रैक्टिस हाउ ओपन कितनी बार कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस. तो यहाँ पे होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाउ ऑफन डू यू, यू है इसलिए डज नहीं लगाएंगे. हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस द पियानो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डू, आई, वी, यू, दे, ऐसे जब प्रोनाउंस होते हैं तब हमें डू या डू नॉट यूज़ करना है. ही सी इट होता है तब हमें डज या डज नॉट यूज़ करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. सी यूजुअली इज ईटिंग सीरियल्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. तो यूजुअली है वो भी ये सजेस्ट करता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो ऐसे सेंटेंस पर हमें वर्ब्स के साथ एस, ई एस, आई एस लगाना है, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे करता है वो सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो सी यूजुअली ईट्स सीरियल्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. सिक्स्थ वन, do you go to the football game today? Do you go to the football game today? यहाँ पे प्लान. So are you going to the football game today? Schedule. Sorry, यहाँ पे आज की बात कर रहा है, तू जाने वाला फ्यूचर, जो नज़दीक का फ्यूचर होता है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ करते हैं. सेवंथ, आई एम थिंकिंग. और थिंक है, नो है, वो कभी भी कंटिन्यू टेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं. खास याद रखना. आई एम थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग अबाउट दिस, इनकरेक्ट सेंटेंस. आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग अबाउट दिस. और थिंक ही रहेगा एज द प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, वो फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है. द फिल्म इज स्टार्टिंग, यहाँ पे शेड्यूल. द फिल्म स्टार्ट्स एट 6 PM. Now take the correct verbs to complete this letter. Dear Hero, I am here at last in the USA, and I am having or have a great time. यहाँ पे I am having, I have a great time. My university semesters does not begin until September. So I am taking this opportunity. I am taking opportunity to earn some money. I am staying with an American family who is owning नहीं होगा, who owns a departmental store. During weekends, I am helping or I help them, not
I am helping, I help them, while on weekend days I take the metro to the city center where I am working. Sorry. During weekends, I am helping or help. There will be help. Sorry. Help them, while on weekdays I am taking the metro to the city center where I am working, not I work, daily routine. I am working means right now, but I work routine. I really liking कभी नहीं होगा. I like it there and hope you will come here soon. Let me know as soon as you are decide as soon as you decide. Write in detail about that you are doing these days. अब आप क्या कर रहे हो? Present continuous. So this is the correction of tense. Now let's move. Now let's see present perfect. तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त हमें हैव, हैज़ और V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म, V1, V2, V3 एंड V4. तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हमें हैव, हैज़ यूज़ करना है सब्जेक्ट के साथ. पहले सब्जेक्ट होगा हैव, हैज़, V3 ऑब्जेक्ट. तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट आप देख सकते हो, सब्जेक्ट हैव, हैज़, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव करने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में होता है. सब्जेक्ट हैव, हैज़, नॉट, खाली नॉट यूज़ करना है हैव, हैज़ के बाद, एंड पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैव, हैज़ पहले ले लेना है. इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैव, हैज़ है वो पहले ले लेना है. देखो क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव में हैव, हैज़, सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. मतलब यू हैव रिटन अ सब्जेक्ट, पॉजिटिव, यू हैव रिटन अ सब्जेक्ट. यू सब्जेक्ट, हैव, हैज़ एंड रिटन पास्ट पार्टिसिपल. अगर उसका नेगेटिव करना है तो यू हैव नॉट रिटन अ लेटर. हैव, हैज़ उसके साथ नॉट और V3 और ऑब्जेक्ट. अगर इसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है तो आपको हैव, हैज़ पहले लगाना है. यू हैव रिटन अ लेटर है ना, तो मैं से बोला हैव यू रिटन अ लेटर, हाउ इज इट इज. हैव, हैज़, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में खाली नॉट यूज़ करना है और इंट्रोगेटिव में पहले हैव, हैज़ को ले लेना है. Let's exercise. Now complete this conversation using the present perfect tense form of verbs in the box. ये कन्वर्सेशन हमें पूरी करनी है. आकाश, हैव यू पैक्ड ऑल योर क्लॉथ्स. यू हैव पैक्ड ऑल योर क्लॉथ्स, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस. और यहाँ पे आकाश के सेंटेंस में देखो हैव हमने पहले ले लिया है, मतलब इंट्रोगेटिंग, आस्किंग क्वेश्चन. तो रीचा कहेगी येस आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग. फिनिश वर्ब हम वहाँ से लिया. हैव के साथ सब्जेक्ट, आई है वो सब्जेक्ट है, हैव है वो हैव, हैज़ हम यूज़ करते प्रेजेंट परफेक्ट में, और फिनिश्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है.
थर्ड है वो इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैव हैज पहले लगाना है, बाद में सब्जेक्ट, बाद में V3। तो देखो यहाँ पे हैव यू किक्ड अ present for your parents in Kolkata? I picked. Have you picked up presents for your parents in Kolkata? Have as पहले बाद में सब्जेक्ट, बाद में V3। Richa says yes, I have brought, I have bought, sorry, BOUGHT, bought, V3 of buy। I have bought books for my father and a new phone for my mother। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट आई है, उसके साथ हैव और बाय का BOUGHT, V3। नाइस, आकाश सेज नाइस। हैव यू टेकन अ प्रिंट आउट ऑफ द टिकट्स? तो यहाँ पे यू हैव टेकन, उसका इंट्रोगेटिव करोगे तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव करते हैं तब हमें हैव हैज़ पहले लेना है। Richa says yes, I have made 2 copies। यहाँ पर भी देखो आई है वो सब्जेक्ट, बाद में हैव हैज़, तो आई है इसलिए हमने हैव लिखा है। अगर ही सीट होता तो हैज़ लिखते, और मैड, मेक का पास्ट पार्टिसिपल। यस, आई हैव मेड 2 copies एंड हैव पुट देम इन माई हैंड बैग। तो पुट है उसका तीनों फॉर्म सेम ही रहता है, पुट पुट पुट। Akash is good. Have you booked a taxi yet? यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो हैव पहले लिया है। Richa says no, I haven't done। ये नेगेटिव सेंटेंस आया, तो आई है वो सब्जेक्ट हैं और उसके साथ हैव हैज़, तो आई वी यू दे के साथ हैव आता है, इसलिए आई हैव नॉट, खाली नॉट और नहीं यूज़ किया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में खाली नॉट का चेंज है। नॉट डन येट, डन है वो V3 ऑफ डू, दैट येट आई विल डू टुमारो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस और क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन अप्रोप्रिएट प्लेस। योग्य जगह पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। दिस इज़ द बेस्ट चॉकलेट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड। तो एवर और हैव का यूज़ किया हमने, तो वो यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया आई रीच होम सो लेट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में हैव ही आएगा और रीच का रीच्ड होगा। सो आंसर होगा आई हैव रीच्ड होम सो लेट। आई सब्जेक्ट, हैव हैज में से हैव, रीच का रीच्ड एंड आई हैव रीच्ड होम सो लेट। थर्ड, द ट्रेजर आइलैंड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, और यहाँ पे दैट आई एवर रीड यूज़ करना है। दैट आई हैव एवर रीड, दैट आई हैव एवर, आई के साथ हमेशा आई वी यू के साथ हमेशा हैव आता है, और V3, तो रीड का इंटरेस्टिंग है, रीड का V3 V2 रीड ही होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अलग होता है। पास्ट में उसका रेड कहते हैं, प्रेजेंट रीड, रेड, रीड। सो दैट आई हैव एवर रीड। नाउ 6th one, मिहिर इज एक्साइटेड, तो ब्रैकेट में बिकॉज विन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट का। मिहिर इज एक्साइटेड बिकॉज ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। बिकॉज ही, तो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम हैव नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम एज लगाएंगे, और विन का V3 होता है वॉन।
because he has won the first prize. Fifth, in the bracket, blank, in the bracket, he go to London and will not back until next month. तो यहाँ पे ही है तो उसके साथ हेज आएगा 100%, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और गो का गोन हो जाएगा. सो ही हैज़ गॉन टू लंडन. देखो यहाँ पे ही हैज़ गॉन टू लंडन and will not back until the next month. Now, sixth, do you know if, in the bracket, she invite her friends yet? Do you know if she has, देखो यहाँ पे she है इसलिए has आया, और invite का invited, I, we, you के साथ have, और he, she, it और singular noun के साथ हम as यूज़ करते हैं. She has invited her friends yet. We have discussed about simple present, present continuous, present perfect. We have discussed simple present, present continuous, present perfect, and this is fourth of present perfect continuous. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का सब्जेक्ट, हैव, हैज़, बिन, आईएनजी वाला वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. मीन्स आई हैव बिन, आई सब्जेक्ट, हैव हैज़ बिन टीचिंग फॉर 14 years. आई हैव बिन टीचिंग फॉर 14 years. देन नेगेटिव में खाली नोट लगाना है और कोई चेंज नहीं है. सब्जेक्ट हैव हैज़ और हैव हैज़ और बीन के बीच में नोट लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में. लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करने में. नेगेटिव में नोट लगाना है हैव हैज़ और बीन के बीच में, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ और पार्टिसिपल के बीच में नोट लगाना है. और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों में सेम है. प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में पहले हैव हैज़ लगाना है. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है. अगर रेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको हैव लगाना है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल वी विल यूज देयर हैव, एंड इन ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल यूज देयर हैज़. नाउ लेट्स सी the next exercise. Complete this sentences using the present perfect continuous forms of the words in the bracket. Kavita is tired because she has been playing. देखो पास्ट में उसने चालू किया था काम और अभी भी चालू है. ऐसे समय ऐसी जब कोई मीनिंग होता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब मैंने 14 साल पहले चालू किया था पास्ट में और अभी भी पढ़ा रहा हूँ तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. तो ये बच्ची ने थोड़े समय पहले चालू किया था और अभी भी खेल रही है. पास्ट में चालू किया, प्रेजेंट में भी चालू, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कहते हैं. ब्रिजेस हैज़ बीन ट्राइंग टू फिनिश हिज होमवर्क ऑल मॉर्निंग. सुबह उसने चालू किया था. तो यहाँ पे ब्रिजेस है इसलिए नाउन है सिंगुलर, इसलिए हमने हैज़ लगाया है. उसके साथ बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल. ट्राइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, या हम उसे वी फॉर भी कह सकते हैं. माई रैबिट इज गेटिंग वीकर बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन ईटिंग प्रॉपरली फॉर लास्ट फ्यू वीक्स पहले उसने खाना बंद कर दिया था, प्रॉपरली नहीं खा रहा था और अभी भी चालू है. और रैबिट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन है, इसलिए हमने यूज़ किया है हैज़ नॉट बीन ईटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग फ्रेंच. आपने कभी चालू किया था, अभी भी चालू है. आप कितने समय से फ्रेंच सीख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. और यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो यू है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले हमने हैव लगाया है.
Fifth, where are my shoes? Where are my shoes? I have. Fifth one, where are my shoes? तो यहाँ पे बेटा बाय मिस्टेक मैंने बुक लिखा है, यहाँ पे होगा आई हैव बीन लुकिंग, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ. आई सब्जेक्ट, हैव बीन लुकिंग. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी. हैव है वो आई वी यू दे के साथ आता है, और हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट और सिंगुलर नाउन से नाउन के साथ आता है. नाउ सिक्स वन, माई मदर हैज़ बीन यूजिंग द सेम फोन फॉर द लास्ट 5 years. लास्ट 5 years हैव बीन यूजिंग. हमने यहाँ पे हैज़ क्यों यूज़ किया, हैव क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि मदर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए माई मदर हैज़ बीन यूजिंग. पास्ट में चालू हुआ, अभी भी चालू है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. सब्जेक्ट हैव हैज़ बीन आईएनजी. सीमी एंड टीना, सीमी एंड टीना, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैव ही आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है. टीना एंड सीमी, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हैज़ लिखा है. तो टीना एंड सीमी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग देयर गिटार स्किल फॉर अपकमिंग म्यूजिक फेस्टिवल. क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ही वो सिंगुलर है, लेकिन ही का प्लूरल दे होता है, तो यहाँ पे सीमी और टीना दो है, इसलिए हैव बीन प्रैक्टिसिंग. बाय मिस्टेक हैज़ रिटन हैव बीन, थर्ड पर्सन प्लूरल, हैव हैज़ हैव बीन आईएनजी. अगर एक व्यक्ति का नाम होता तो हैज़, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति है, वो प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल. देन दिव्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम हैज़ लिखेंगे. दिव्या हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रेजेंटेशन ऑल वीक. सो दिव्या है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज़ लिखा, और दिव्या और कमल होता तो वहाँ पे हैव लिखते. तो कहाँ हैज़ लगता है और कहाँ हैव लगता है? तो एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज हैव. in third person only we use third person singular only we use has. In rest of you we will use have. First person singular plural have, second person singular plural have, and third person plural have. Only in third person singular we use has. Now let's move to the next exercise. Rewrite these sentences using the present perfect continuous such that their meaning remains same. Use the words for and since. तो for and since है वो present perfect continuous में यूज करते हैं wherever required. The one has been given. Vijay started cleaning his room an hour ago. He is still cleaning it. 1 घंटे पहले विजय ने चालू किया था, started cleaning his room and he is still cleaning it. So Vinay has been cleaning his room for an hour. 1 घंटे से वो present perfect continue. Dinesh went to sleep in the afternoon. Why is he still sleeping? अभी भी वो सो रहा है. Why has Dinesh been sleeping since afternoon? दोपहर से वो अभी तक सो रहा है, since. और why has been, why has दिनेश के साथ, दिनेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इंट्रोगेटिव किया तो सब्जेक्ट के पहले हैव हैज आता है. इंट्रोगेटिव जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव हैज पहले लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है. सो व्हाई हैज दिनेश बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून. थर्ड वन, जतिन इज ट्रैवलिंग in the USA. He started his travels
अ मंथ गो, पास्ट में चालू किया तो अभी भी ट्रैवलिंग है। तो जतिन हैज़ बीन ट्रैवलिंग इन यूएसए फॉर अ मंथ, एक मंथ से वो अभी भी ट्रैवलिंग कर रहा है। जतिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड देयर हैज़, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बीन और आईएनजी लगता ही है। नाउ फोर्थ वन, fourth one, 5 years ago, in the past, 5 years ago, Josie and Betty started a company together. They still run the company together. चालू किया तो अभी भी चालू है। तो यहाँ पे तो दो नाउन है, जोसी एंड बेटी, तो हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दो व्यक्ति है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो जोसी एंड बेटी हैव बीन रनिंग अ कंपनी टुगेदर for 5 years. Subject have has been ing, and third person singular, that's why have. Fifth, you waited to meet me for 5 hours. Why did you wait? Past. Why have you been waiting to meet me for 5 hours? Why have you been waiting to meet me for 5 घंटे से क्यों वेट कर रहे थे? 5 घंटे से आपने चालू किया, अभी भी क्यों वेट कर रहे हो? Why have you been, अभी भी क्यों वेट करे? Why have you been waiting to meet me for 5 years? Have हमने you से पहले लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और we के साथ सेकंड पर्सन प्लूरल के और सिंगुलर के दोनों के, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ have यूज करते हैं। नाउ सिक्स्थ, किरण स्टार्टेड लर्निंग द वीणा इन 2010, शी स्टिल लर्निंग इट, पास्ट में चालू किया, अभी भी चालू है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। किरण हैज़ बीन लर्निंग द वीणा सिंस 2010, 2010। तो किरण हैज़ बीन, किरण थर्ड पर्सन सिंगुलर, खास याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हैज़ आता है, बाकी के साथ हैव आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूसली बीन लगाएंगे, हैज़ बीन। किरण हैज़ बीन लर्निंग द वीणा सिंस 2010। सेवंथ, मदर इज वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एट 6 PM, कब से चालू किया है, अभी भी चालू है। सो मदर हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन सिंस 6 PM. So mother started in the past and it is going on yet right now. That's why it is called present perfect continuous, and mother is third person singular. So with third person singular we use have, has, been and ing. Now the last one of the exercise. My family visits the same doctor. We first visit her in 2014. From 2014 they have started to meet the doctor. Means in the past it has started, now it is going on the present even. So present perfect continue. My family has been visiting the same doctor since 2014, and my family has, family third person singular, that's why has, been and ing. So these were the exercises we have done, and very important chapter. If you want to learn the correct English, then you must be master of all tenses. But in this chapter we have learned only 4 chapters: simple present, present continue, present perfect and present perfect continue. मैं आशा रखता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और आप समझने का प्रयत्न करोगे कि 4 टेंस है, उसका स्ट्रक्चर, अगर आप उसका फॉर्मेट जान लोगे तो ईजी हो जाएगा, और ख़ास करके आपको फोकस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में करना है, वही डिफ़िकल्ट है, वरना बाकी इतने इजी, इतने हार्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव में नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव में एम इज़ आर हैव एज पहले लेना है, और नेगेटिव में खाली नोट लगाना है, बाकी बहुत इजी है। आशा रखता हूँ कि आप मेहनत करोगे और टेंसेस सीखने का प्रयत्न करोगे। थैंक यू।